Welcome back to the second video of my channel Nyunga Master, and this is the channel where you learn how to speak fluent English, how to speak effective English, and how to speak English, which can help you have your people, have your listeners, have your audience spellbound with your English, spoken English. जो आपको स्पोकन इंग्लिश से आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही तरीके से इफेक्टिवली बोलकर यू कैन इन्फ्लुएंस देम, यू कैन हैव गुड इम्पैक्ट ऑन देम, राइट। बिकॉज बोलने में और बहुत अच्छा बोलने में देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि अगर आप बोलो और बहुत अच्छा बोलो। एंड here I will teach you how to speak effective English, how to have people spellbound with the communication skills, especially I'm talking about English language, कि इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कैसे बोला जाए। वन थिंग आई वुड टेल यू about myself, because I will not talk about this and that, I will not talk about people, because I will talk about only what I've experienced and what I have seen and observed। जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, और जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, आई कैन टॉक अबाउट दैट ओनली, मैं केवल उसी की बात कर सकता हूँ। सो बिलीव मी, वंस यू मेड अप योर माइंड, जब आप एक बार अपने बात मतलब मन बना लिया, तो फिर ना इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स गोना बी अ ब्रीज फॉर यू, कि ये बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। बट if you give it a try, if you really take इंटरेस्ट एंड इफ यू फ्लिंग योर सेल्फ इनटू लर्निंग, अगर आप इंटरेस्ट लो और आपको बहुत झोंक दो किसी भी चीज मतलब इंग्लिश बोलने में, then you would see that the results are now there, कि results अब आ गए हैं। So this is what I asked you, especially in my last video, and it was basically it was my first video। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मैंने आपसे आपसे बोला भी था that if you really want to learn spoken English, then you have to commit yourself to learning। तो आपको ना सीखने के लिए आपको कमिट करना पड़ेगा। You cannot see that a magic is going to happen, कि कुछ मैजिक होने वाला है। So what I just wanted to tell you about something which I did, कि जो मैंने आपको बता रहा हूँ, बिकॉज many people who are able to write good English, but when it comes to speaking, they find it difficult to speak। बहुत से लोग बहुत अच्छी इंग्लिश लिख लेते हैं। It's been my experience because I've been teaching students, I've been teaching job doers and professionals for almost a decade। मैंने एक डेकेड से प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स वगैरह को मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। एंड दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट रीच्ड दिस कंक्लूजन, कि बहुत से लोग हैं जिनको, बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, एंड दे कैन राइट रियली प्रिटी वेल, बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। दे कैन इवन हैव द पीपल स्पेल बाउंड with their written English, or you can say writing skills। but when it comes to speaking, जब ना बोलने की बारी आती है, they find it difficult to even get started, or if they start faltering। अगर वो स्टार्ट भी करते हैं तो फॉल्टर करने लगते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, because if I talk about me, because I've been doing it for quite a long time, because as I shared with you in my last video, कि I've been a Hindi medium student throughout my life। but because I'm very big on cricket, I mean मैं cricket में बहुत ज़्यादा interested हूँ, so I would always see the players, because when there is presentation ceremony, post match ceremony is there, right? So the student, I'm not student, I'm talking about the players, so they had to be there, and they had to interact with the people over there, and they have to speak in English, उनको इंग्लिश में बोलना पड़ता है। And when I'm talking about my childhood, so I would just see them, and I would find that they would speak flawlessly well। बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलते हैं। And and I developed this curiosity, I developed this taste, कि मुझे भी ना इनके तरह इंग्लिश बोलना है। So I started working on that, and believe me, I've never done translations, मैंने कभी translations नहीं किए हैं। What I've done throughout my life is I've always practiced, मैं हमेशा practice किया हुआ है। It's not that कि कुछ भी बोलता था। आई वुड जस्ट रीड, मैं रीडिंग करता था, एंड आई वुड जस्ट सी द सेंटेंसेस, एंड आई वुड जस्ट ascribe a meaning to those sentences। इसका इनका मीनिंग क्या होगा, आई वुड जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट। एंड हाउ वुड आई फाइंड इट आउट, आई वुड जस्ट because in school,
I didn't have any teacher, because I've been a Hindi medium student. So English teacher was there, but they were not interested in teaching spoken English. So and I didn't have any internet access. मेरे पास कोई internet access भी नहीं था. So what I did, I will teach you each and everything. I'm just sharing these experiences because uh, you must know the reality. आपको reality बहुत पता होना चाहिए. Because ऐसे ही केवल पढ़ते जाएं, and we are not actually trying to know the real practice. What real practice is, and what is really there to be done. कि वास्तव में चीज क्या है जो हमें करनी चाहिए. तो हम पढ़ते तो हैं, बट वी डोंट एक्चुअली गेट दोज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स. हमारे पास वो एक्सपेक्टेड एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स आ नहीं पाते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग. So I have never done translations. मैंने कभी translations किए नहीं हैं. I've always practiced. मैंने हमेशा practice किया हुआ है. और for this particular reason, I've always been interested in learning more and more words. कि बहुत आपको बहुत words भी पता होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप है ना जस्ट अपने इंटरेस्ट जगा लिया and then you are just practicing. But what will you practice with? You must know. You must have a vast vocabulary. Initially तो मैं नहीं बोलूंगा. But if you really want to speak like a pro, if you really want to speak like a professional, if you really want to speak like a native speaker, then you should have a good amount of words. I mean, because जो भी आप बोलने जा रहे हो कम से कम वो वर्ड तो आपको आना ही चाहिए. अगर वो नहीं आएगा, then how, no matter how hard you try, but you would always find yourself stuck. You would be scratching your head trying to recall the words and trying to you know you'll be grouping for the words because the words are nowhere to be found because you haven't come across them, or you haven't learned them, or you haven't tried to make them the part of your life. So that's why you're struggling. तो आपको ना ये चीजें करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपको बता दिया दैट यू हैव टू डू रेगुलर रीडिंग. आप रेगुलर रीडिंग करते रहो, एंड वट एवर द वर्ड्स यू फाइंड देयर उनको आप प्रैक्टिस में लाते रहो. यस, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर्स, सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट में कैसे बोलते हैं. इस सेंटेंस को अगर हम बोलेंगे तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा. यू मस्ट नो दिस थिंग. अगर आपको ये पता है देन यू कैन इजीली स्पीक इंग्लिश. तो आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं. जैसे आज मैं अपना सेंटेंस की मैं बात करता हूँ. सो लेट्स टॉक अबाउट द सेंटेंसेस विच आई वांटेड टू लेट यू नो कि मैं क्या सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट वेरी सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस की हम बात करते हैं जिसमें देर इज नो वर्ब, बट द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट. उसमें कोई वर्ब नहीं है. और इस सिंपल सेंटेंसेस में आप ना इज एम आर का यूज करते हो. यू ऑलरेडी नो दिस. और इसका यूज कहाँ पर होता है? यू नो दिस. इसका यूज सिंगुलर के साथ में होता है. एम का यूज केवल आई के साथ में होता है. देन आर का यूज प्लूरल के साथ में होता है. एंड यू नो दैट प्रेजेंट में किस तरह की आइडेंटिफिकेशन आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ हूँ. ये सेंटेंस हो सकता है तुम कौन हो, और तुमसे उसका क्या रिश्ता है, और वहां पर कौन है, ये घर किसका है, ये कार किसकी है, ये बहुत ही बड़ी कार है. सो सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज सेंटेंसेस विदाउट वर्ब. इस टाइप के सेंटेंसेस ना सेंटेंसेस विदाउट वर्ब होते हैं. और ये सेंटेंसेस को बोलना कोई बड़ी बात नहीं है. यू मस्ट नो. बट आपको सेंटेंस को वर्ड्स को रखना कैसे है, यू मस्ट नो दिस. आपको ये पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू से दैट गलती किसकी है, सो हाउ वुड आई से दिस, हाउ वुड आई से दिस. आप मैं इसको मैं डिफरेंट तरीके से बोल सकता हूँ. डिपेंड्स ऑन द वे आई वांट टू स्पीक. मैं जिस तरह से बोलना चाहता हूँ उस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से हु इज एट फॉल्ट, गलती किसकी है, और हुज मिस्टेक इज दिस, यह गलती किसकी है, और हु इज रॉन्ग, गलत कौन है. सो डिफरेंट वेज आर देयर. सेंटेंस को बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं. यू कैन पिक एनी. आप किसी भी तरह से बोल सकते हो. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू डोंट हैव टू क्रैम द सेंटेंसेस बिकॉज यू डोंट नो कि कोई जो सामने वाला इंसान है वो कैसे बोलने वाला है. सो आपको यू शुड हैव वेरिएशंस इन योर लैंग्वेज. आपकी लैंग्वेज में वेरिएशंस होना बहुत जरूरी है. जिससे क्या रहता है, समटाइम्स यू maybe you may not be able to recall the kind of structure or you're going to use. Sometimes you don't really know how to say the sentence. Then you can mold it. You can have a different kind of structure. आप दूसरे स्ट्रक्चर से बोल सकते हो. दूसरा सेंटेंस अगर मैं आपसे बोलूं कि वहां पर कौन है, सिंपल सा है वहां पर, बिकॉज इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट
प्लेस विच इज एट अ डिस्टेंस, सो वहां पर कौन है, सो हु इज देयर, वहां पर कौन है, हु इज देयर, देयर मतलब वहां। और हु बिकॉज इट्स अ question word, so it will be in the beginning, ये starting में रहेगा। and who because we don't know who the person is, it's a singular, right? so हम करेंगे who is there, who is there, right? next अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कौन है, so how would I say who is in your home? Who is in your home? रूम में कौन है? Who is in the room? Who is in the room? उसके घर में कौन है? Who is in his room? Who is in his room? Who is in her room? अगर if it's a boy, it's a male, you can say who is in his room. और अगर if it's a female, then you'll say who is in her room, right? वो किसके उसके घर में कौन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसके घर में चोर है, किसके घर में चोर है, नाउ दिस सेंटेंस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन। हम इसमें क्या, किसके घर, ये पूरा जो क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है ना, वील स्टार्ट विद दिस, किसके घर में। सो इन हुज हाउस और इन हुज होम इज द थीव, इन हुज होम इज द थीव, इन हुज होम इज द थीव, इन होम हुज होम इज द थीव, किसके घर में चोर है। और नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिंपल सा बनेगा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम हो कौन, सिंपल सा अगर मैं बोलूं तुम कौन हो, हु आर यू, तुम हो कौन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, एंड यू हैव टू बी अ बिट अग्रेसिव एंड you'll say who the hell are you, who the hell are you, because this the hell, this creates that emphasis, that this creates, this brings that irritation or the anger kind of emotion. So who the hell are you when you are quite angry with somebody, and then you can say कि आप मुझसे नाराज क्यों हो, so why are you annoyed with me, why are you annoyed with me, why are you angry with me, why are you cross with me, why are you mad at me, आप मुझसे नाराज क्यों हो। एंड पागल हो क्या, आर यू आउट ऑफ ए माइंड, आर यू आउट ऑफ ए माइंड, भैया मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, आर यू आउट ऑफ ए माइंड, पागल हो क्या, आर यू मैड। और for example, you can also say different sentences. I mean, these are simple sentences and you can easily speak these sentences. आप इन sentences को बहुत आसानी से बोल सकते हो। There is no rocket science, इसमें कोई rocket science नहीं है। For example, मैं संडे को फ्री नहीं हूँ, so I'm not available on Sunday. I'm not free on Sunday. I'm not available on Sunday. अगर मैं किसी से पूछूं क्या ये सीट पर कोई है, I'll simply say, is the seat taken? Is the seat taken? Is the seat taken? और अगर मैं आपसे पूछूं कि अ, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, so I'm really very, worried, मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, I'm really very worried, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, you can say I'm really, मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है, I'm really stressed out, बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। So depends on कि आप किस सेंस में परेशान बोल रहे हो। So you have to learn these kind of things, or you know this is going to be quite easy, बहुत easy है। So sentences without verb are quite easy, but अगर इन sentences को मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने बोला मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, सो आई एम हियर। अगर मुझे ये बोलना हो कि मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, सो द सेंटेंस विल बी अ बिट डिफरेंट। आई बीन हियर सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। अब ऐसा क्यों, बिकॉज सी द डिफरेंस, पहले मैंने बोला मैं यहाँ पर हूँ, सो आई एम हियर। अगर मैं बोलता हूँ मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, सो देर इज टाइम इन्वॉल्व इन द सेंटेंस, सेंटेंस में टाइम है, आई मीन देर इज टाइम, सो सेंटेंस इज एमआर की जगह पे हैव बीन से बन जाता है, देर इज नो वर्ब एक्चुअली। सो आई बीन हियर सिंस मॉर्निंग, आप वहां पर कब से हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर, हाउ लॉन्ग इज मतलब कब से। और हाउ लॉन्ग का जब हम यूज करते हैं, सो वी नीदर यूज सिंस, नॉट फॉर, नॉट टिल, वी सिंपली से हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर। और um, आप कितने सालों से इस शहर में हो, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस सिटी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन in the city, how long have you been there in the city, or how long have you been in the city, or such kind of sentences can be said very easily, right? So आज के जो वीडियो है उसमें मैं इतना ही आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, we'll have lots of discussion, and I'll really let you know the real English which
कैन रियली हेल्प यू अ लॉट, जिससे आपको बहुत है ना हेल्प मिलने वाला है। बट वन थिंग आई वुड ऑलवेज टेल यू कि अगर आपको वास्तव में बहुत अच्छा स्पोकन इंग्लिश का सीखना है, then practice on regular basis, or whatever, if any there is any sentence which is giving you some trouble, you can you can tell me about all those things through the comments. In the comment box you can drop a comment, and then I'll really consider that comment, and uh, tell you I would tell you about the same in the next video. Next video में आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ. And if you want more and more practice, then you can join my paid courses, or you can have interaction with me. My paid courses are available, and if you want separate training from me, then that is also available. That is online, so you don't have to be worried about that. You don't have to be worried about it. So till then, yeah, I'm just taking a leave, and I'll see you in the next video. Right? Take care. Don't forget to practice.